Hello, some network issue is there, but we have to continue this segment today, and this is the recorded version. We will communicate all these things with those persons who are not being available today here at that time. So here is the my this topic. What is the 10 days back-to-back personality development workshop? Here we invite so many members in my workshop to um, teach you all, to narrate so many new things, innovative things, which we can plan in a very limited time period. Here I am briefing some importance about Dr. Satyaprakash Talent Group. It is a very innovative group dedicated to convince people to work upon their own talent. Here we added more than 558 people, and Dr. Satya Hope Talks, where I have about 50 people present today, and the 10 days back-to-back personality development specific 5 to 15 August group have also about 40 members today. This is my second day where I am going to narrate something very important, that is what is the stress management and what is the immunity challenges. If we discuss about stress management, then we have to see what are the role of stress and what are the causes by which immunity can be disturbed after the disturbance of mindset. Here I have a paper, Psychological Bulletin 2004. It is a very old paper I have selected for this talk today, because today everyone is discussing about what is the immunity and what is the stress management and all those things. But taking the reference from very old publication will convince you that it is very important topic, and very long back it has been discussed, and there is no issue of just present mindset, present scenario. Here we have see that Suzanne and Gogri have wrote and did meta-analysis study for the data of 30 years, and they have inquired so many papers for the covering the psychological stress and human immune system. It is a very innovative thing, and at that time it was nothing related with COVID and present scenario, but they have seen that the stress management should be managed, and there are so many immunity challenges always available for the always available for the personality. So today, why it is important to discuss immunity and stress? इसके बारे में तो कहना ही बेकार है, क्योंकि आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी पाना बहुत जरूरी है. वी आर वेरी known to with the term that what is the stress and what is the immunity, but what is the hope? क्या हमारे पास होप है? हम बहुत जल्दी उम्मीद में हैं. और इसी स्पेसिफिक बात को कहने के लिए, यही एक स्पेसिफिक बात कि अभी हमारे पास उम्मीद की किरण कहाँ है, इस बात को डिस्कस करने के लिए टुडे का सेमिनार वी हैव ऑर्गेनाइज. वी हैव डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द स्ट्रेस, everyone is knowing that, and what is the specific impact on immune system, is any impact on mindset, on immunity, and if you are knowing that what is the impact of immunity, what is the impact of mindset on immunity, then you have to see that what is the hope today. Today I have selected here this paper, this meta-analysis. We convinced that ability to respond to environmental threats like predation and natural disorders. ये पेपर बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारे लोगों के पेपर को डिस्कस किया गया है, और इसमें एक बात बहुत साफ तरीके से आई है कि मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, जब वो प्रिडेशन का शिकार होने का डर और नेचुरल डिसऑर्डर के प्रति भय होता है, तो उसका इनहांस्ड सर्वाइवल के प्रति उसकी क्षमता बढ़ जाती है. वो उसकी बॉडी अपने आप काम करती है कि किस तरीके से हम बचें, और इसी सिस्टम को, इसी एक्वायरेंस को, इसी को प्राप्त करने की क्षमता को हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं, या अपने अंदर साइकोलॉजिकली चेंज करके अपने को बचाने के लिए तरीके. इन मैमल्स व्हाट इट, हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीवन में क्या होता है, इनहांस द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. आवर हार्ट
and large skeletal muscles work hard to get more oxygen and glucose at the time of predation and natural disorder. इसका मतलब हमारा शरीर काम करता है जब हमें इन्वायरमेंटल थ्रेट्स आते हैं, जब हमें परेशानियां होती हैं, तो हमारा शरीर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है और उस एक्स्ट्रा काम को करने में उस एनर्जी को वो हमें जरूरत पड़ती है। तो अभी हम स्ट्रेस पे आते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस एंड एडवर्स कंडीशन की क्या रिजल्ट होते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एडाप्टिव बिहेवियर सच एज फाइट और फ्लाइट। अब मैं आपसे पूछूंगा, यदि कोई खतरा हो, कोई भी खतरा हो, तो बॉडी क्या करती है? या तो उससे संघर्ष करती है या तो वहां से दूर भागने की कोशिश करती है। कोई भी अगर किसी छिपकली को भी आप मारेंगे तो या तो हमला करेगी या तो उससे दूर भागेगी। किसी कीड़े को भी अगर कोई छिपकली हमला करती है तो क्या करता है? या तो वहां वो छिपकली के प्रतिरोध में वो थोड़ा देर फड़फड़ाता है और रिएक्ट करता है या फिर उड़ जाता है। इसी चीज को आप समझने के लिए यदि आप किसी भी परिस्थिति को फेस करें, देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि साइकोलॉजिकली हम लोग कितने स्ट्रांग होते हैं और हम या तो अडॉप्ट करते हैं या तो हम वहां से हट जाते हैं। हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड आवर बॉडी। जब भी हम तनाव में होते हैं, एडवर्स कंडीशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी इमीडिएट कुछ न कुछ एक्शन करती है। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्यूनोमॉड्यूलेशन। व्हाट इज एडॉप्टिव रिस्पॉन्सेस। जब हम एडॉप्टेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है, जिसके लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई घाव है, वुंड है, चोट लगी हुई है, उस चोट पे कोई भी व्यक्ति मलहम लगता है, दवाई लगता है, लेकिन बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करता है वुंड रिपेयर। कैसे? इन्फेक्शन ना हो, और कुछ हार्मोन्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, साइटोकाइंस होते हैं, उसका अधिक मात्रा में ब्लड सेल्स, WBC, ल्यूकोसाइट, इन सबों की पैरामीटर बदल जाते हैं, बॉडी में चीजों की संख्या बढ़ जाती है। रोग से लड़ने के लिए ये सेल्स अपने आप आगे आते हैं और हम उस चीज को कवर करते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस रेयरली इनकाउंटर मेनी ऑफ द स्टिमुलाई। यदि हम पीछे की परिस्थितियों को ध्यान दें, इवोल्यूशन को ध्यान दें, तो जो परिस्थितियां उस समय थी, जो कंडीशन थी, जो संघर्ष था, वो संघर्ष आज की डेट में मनुष्य के पास नहीं है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी सिक्योर्ड, बट हमारा शरीर, हमारी व्यवस्था उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। थ्रेट्स दैट डू नॉट रिक्वायर ए फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी परेशानियां नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास थी, लेकिन आज की डेट में भी कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिसको हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको फेस करती है। जैसे एकेडमिक एग्जामिनेशन, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सभी लोग एग्जाम देते हैं, सभी बच्चे एग्जाम देते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं एग्जाम के डर से प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है? फिजिकल कंसिक्वेंसेस नहीं आते हैं तो हम लोग चेंज इन इम्यून सिस्टम होता है, हमारी नींद बिगड़ जाती है, हमारा तनाव का स्तर बदल जाता है, हम सोचते हैं, सबसे पहले तो नींद ही जाती है। तो थ्रेट्स दैट डू नॉट रिक्वायर ए फिजिकल रिस्पॉन्स, academic examination may therefore have physical consequences including changes in immune system। फिजिकली चेंज होता है इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम बदल जाता है। सीधी सी बात है कि जब हमें साइकोलॉजिकल थ्रेट्स आते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। इस मेटा एनालिसिस में जो हमने इसमें इंक्लूड किया है इस पेपर का, इसमें 30 साल का रिसर्च है। 2004 से पहले 30 साल का डेटा 300 स्टडी को निकाल के ये निकाला गया है कि ऑन स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी इन ह्यूमन व्हाट वाज द रिजल्ट। हम देखते हैं हमारा रिजल्ट यही है कि साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आर कैपेबल टू मॉडिफाई वेरियस फीचर्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो भी होते हैं उसके सीधे सीधे इफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स पे होते हैं, और यही हमारी रियल स्टोरी है। यही मेरा टारगेट है आज की टॉक का, जहां से हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि हमारा माइंडसेट यदि ठीक है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। ये इम्यून सिस्टम के कारण माइंडसेट बदलना अलग बात है, लेकिन इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, इस कोविड-19 के फेज में हमारा अगर साइकोलॉजिकली चैलेंज है, आज की डेट में हम चैलेंज है, हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर हम इस साइकोलॉजिकली चैलेंजेस को
दूसरे तरीके से लेते हैं, हम अपने ब्रेन को कहीं अच्छी जगह किसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंगेज करते हैं, तो क्या रिस्पांस होने वाला है। स्ट्रेस टेक्सोनॉमी को अगर समझें, 5 तरीके के स्ट्रेस इस पब्लिकेशन में बताया गया है। एक्यूट टाइम रिलेटेड स्ट्रेसर इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी चैलेंजेस, कोई भी प्रैक्टिकल करके पब्लिक मेंटल अर्थमेटिक कुछ सवाल देके, कुछ सवाल जवाब, कुछ क्वेश्चन करके किसी की ब्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट करना, एक खास टाइम पीरियड में उसको स्ट्रेस दिया जाता है उस प्रश्न का, उसका इम्पैक्ट देखना। ब्रीफ नेचुरलिस्टिक स्ट्रेसर सच एज एकेडमिक एग्जामिनेशन, नेचुरलिस्टिक स्ट्रेसर्स हैं, ये आने हैं, इनके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल इवेंट सीक्वेंसेस, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई परिवार का मेंबर नहीं रहा, उस समय क्या स्थिति होने वाली, ये भी एक अलग तरह का स्ट्रेस है। इस तरह से 5 टाइप के स्ट्रेस हैं। मेजर नेचुरल डिजास्टर जो आज की डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं, बाढ़ आना, सूखा होना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का है, लेकिन आज की डेट में जो नेचुरल डिजास्टर है कोविड-19 महामारी टाइप का, जिसमें कि हमें अभी उम्मीद नहीं है कि हम कब तक लॉकडाउन से बाहर या अनलॉक फेज में जो लिमिटेशंस हैं उनको कब हम रिमूव करेंगे, हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस होता है लॉन्ग टर्म होता है, इसका बहुत दूसरा इफेक्ट होता है शरीर पे। क्रोनिक स्ट्रेसर व्हाट आर, अनलाइक द अदर डिमांड वी हैव डिस्क्राइब्ड, यूजुअली परवेड ए पर्सन्स लाइफ फोर्सिंग हिम टू हर, कोई स्पेसिफिक इशू हो जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू, उसकी अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, क्रोनिक स्ट्रेसर है। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि हमें अपनी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ बदलाव करना पड़े। इस तरीके से 5 तरीके के स्ट्रेस यहाँ बताए गए। आज हम किस तरह के स्ट्रेस को कॉमनली पूरी सोसाइटी किस चीज को फेस करती है, दैट इज द मेजर नेचुरल डिजास्टर्स। इसका तनाव पूरी कम्युनिटी पर, पूरे ह्यूमनिटी पर है। COVID-19, this is the present scenario, you have all related with all these things here. A major natural disaster give us to series of related challenges. हमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ आज देखने को मिल रहे हैं। इसमें हेल्थ है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें। इसमें मैंने 4 चीज जोड़ी है। तो आज की क्लास में हमारे साथ जो लोग हैं उनके नाम हम बताते हैं। अजय अग्रवाल जी, उमेश जी, नीतू जी, रिधेंद्र, सतपाल, पूजा, अतीक, अखिलेश, रवि, अवस्थी, सुधीर, आशुतोष, कमलेश, आदर्श शर्मा, राहुल चौधरी, आवर टैलेंट, सुरेश बहादुर, अर्पिता यादव, प्रभास, ऋषिकेश, विक्रम एंड भट्टाचार्य, जयशंकर, हर्ष, यश, फलक, प्रियंका, आनंद, कश्यप आनंद, राजेश चतुर्वेदी, काजोल, रितु सिंगल, मुकेश खेरा, they are the expert, and so many people, क्षितिज राय, Satish Pandey, Raju Yadav, Bipin Pandey. These are the few names which I have taken as a lead in this personality development workshop registration, and these more than 550 people are already in talent group, where we are discussing the impact of positive energy and what is the role of talent and what is the uniqueness, why we work on self-belief and all those things. Today this workshop is organized to discuss, is it required, क्या हम लोगों का ये जो प्रयास है ये इतना ही आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए हमें और आपको ये सेमिनार ज्वाइन करना पड़ेगा। हम आज से पहले 150 वेबिनार दे चुके हैं, जिसमें हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। जो स्पेसिफिक ग्रुप के लोग हैं जो वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि इन चीजों को किस तरह से समझा जाता है। आज हम लोग इस रिकॉर्डेड फॉर्म को उस प्लेटफॉर्म पर भी डाल रहे हैं वर्कशॉप में, जिसमें कि ये चीजें स्पेसिफिकली लोग समझ पाए कि वेबिनार के थ्रू पढ़ने और उस तरह की कैजुअल डिस्कशन के थ्रू चीजों को लेके चलने में क्या फर्क होता है। यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन लेके कमेंट बॉक्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको स्पेसिफिकली इस विषय पे क्या पूछना है। तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम लोग एक 10 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए। इसमें अभी और लोग भी आएंगे, डॉक्टर सत्यप्रकाश भी आपको ऐसे बताते रहेंगे।
सीधे सीधे अगर हम बात कहें तो आज के फेज में हमें खुद डिसीजन लेना है कि उम्मीद कहाँ है, होप कहाँ है, और अगर उम्मीद हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में है तो क्या हमें उस पर वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोविड स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, जब हम तनाव में होते हैं, द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट ऑफ एंटीजेंस इज रिड्यूस्ड। हमारे इम्यून सिस्टम जो उनकी ताकत होती है लड़ने की, वो घट जाती है। इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं, 2001 का ग्राफ है, जिसमें डिस्कस करके बताया गया है कि इम्यून फंक्शन कैसे रिलेट होता है स्ट्रेसेस के प्रेजेंस में। जैसे जैसे समय बीतता है और स्ट्रेस कंडीशन का टाइमिंग बढ़ता जाता है, तब तक वो फंक्शनलिटी कम होती जाती है। यदि हम छोटा स्ट्रेस हो तो वो इम्यून सिस्टम को कम प्रभावित करता है, लेकिन अगर ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाला ये जो प्रॉब्लम है ये मॉडरेटली प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबा हो जाए, तो फिर इम्यून सिस्टम कितना वीक हो जाता है, इसको हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम बहुत कम हो गया है, 10% भी नहीं। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस की प्रोलॉन्गिविटी को, जब हम स्ट्रेस लंबे समय तक जाता है, तब एक इस इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और उस इम्यूनिटी को कवर करने के लिए, उस इम्यूनिटी को गेन करने के लिए, यदि ये इम्यूनिटी मानसिकता का प्रभाव है, अगर हम मानसिक रूप से कमजोर ना हो, यदि हम अपने को एंगेज रखें, दैट इज व्हाई वी आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। यदि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हम ससेप्टेबल होते हैं। आपके पास दो उम्मीद है, एक है मास्क, एक है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरी है अपने को अच्छी आयुर्वेदिक दवाओं से मजबूत रखना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और जो भी रिकमेंडेड हो उसे आप लेते रहें। और दूसरी बात, यदि आप इस चीज में विश्वास रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का माइंडसेट इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने माइंडसेट को भी कंट्रोल करना होगा, तब आप इस वर्कशॉप के थ्रू एक्चुअल रिजल्ट पा सकते हैं। यदि आपकी ये थिंकिंग है कि हम वेट एंड वॉच करके, चीजों का टाइम करके एक दवा आएगी स्पेसिफिक तभी हम चल पड़ेंगे या अपने को महसूस करेंगे, उस चीज में और उस लॉकडाउन फेज में अपने घर से बैठ के कुछ एक्टिविटी करके, पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रख के क्या हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं? दैट इज वेरी स्पेसिफिक थिंग ऑन विच वी आर डिस्कसिंग हियर। दैट इज व्हाई वी आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। इस बात को कहने का सीधा सा मतलब है, यदि हम अपनी इम्यूनिटी को पाना चाहते हैं तो हमें अपने को पॉजिटिव चीजों में इंगेज रखना होगा, बिजी रखना होगा। हमारे शरीर का थकना और उन चीजों, पॉजिटिव चीजों के लिए थकना जरूरी है, न कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस से अपनी इम्यूनिटी को कमजोर करना। हियर वी सी दैट स्ट्रेस इंक्रीज द हीट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपिंग हीट हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स ऑन इम्यून प्रोसेस एंड इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन का घटना, जो हार्मोन है उसके इम्पैक्ट से कार्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस कर देता है इम्यून सिस्टम। ये सीधा सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट हमको बताया जा रहा है कि जैसे ही हम स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस के लिए फीलिंग आती है हमारे में, हमारा माइंडसेट हो, हमारा ब्लड प्रेशर हो, हमारा हार्ट हीट रेट हो और डिस्टरबेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट की समस्या भी आती है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस में गैस बनने लगती है, ये बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन आज के फेज में यदि स्ट्रेस के कारण हम, दूसरी चीजें तो हैं ही हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए, यदि हम अपने माइंडसेट के कारण स्ट्रेस को बढ़ा लें और हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, तो आज की डेट में हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इस बात को यदि आप ये मानते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही दवा आएगी आप ठीक हो जाएंगे, आप चल पड़ेंगे, लेकिन ये स्टेटस अभी बहुत दूर है। अभी हमें अपनी चीजों पे काम करते हुए अपने को कैसे बचाएं, इस पे काम करना है।
और इस चीज के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने को पॉजिटिव चीजों में इंगेज करना। एक और पेपर है, द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग इन बूस्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑप्टिमल एफर्ट फॉर टैकलिंग इन्फेक्शन। 2018 का पेपर है, ये बिल्कुल नया पेपर है अभी। साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड इम्यूनिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। अब बात पूरी हो चुकी है। यदि आप समझना चाहते हैं कि रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग कितनी जरूरी है आपकी इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग के लिए, तो इस पेपर को पढ़िए। इस बात को, बस इसका टॉपिक ही अपने आप में पर्याप्त है, इसकी टाइटल ही पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि साइकोलॉजिकली अगर हम स्ट्रांग हैं, यदि हम फिट हैं, अपने को महसूस करते हैं, अपने को इंगेज रखते हैं पॉजिटिव चीजों में, तब हमारी इम्यूनिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और इस तरीके से हम अपनी बात को पूरा कर चुके हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस टॉक को देख रहे हैं, टैलेंट्स ग्रुप हो या फिर एक्सेल कॉन्सेप्ट क्लासेस हो या फिर लेसन पेज हो या फिर होप टॉक पेज हो या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट डेडिकेटेड वर्कशॉप हो या प्रोफाइल हो, कहीं पर भी यदि आप इस चीज को डिस्कस करेंगे तो सभी लोग ये चाहेंगे कि हमें रिलीफ चाहिए, हमें एक उम्मीद चाहिए, होप चाहिए। वेयर इज होप? दिस इज द होप। We have to engage in some positive thing. We have to discuss some good thing. We have to interact with some good people. We have to consume our time in positive thing. We have to invest our thought process in that thing which may nourish ourselves. हमें झगड़ा वहां करना है अपने आप से जहां हम कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए उम्मीद है। अभी हम लोग महामना के साथ हैं, महामना प्रांगण में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूध पियो, कसरत करो, नित्य हरो जपो हरिनाम, हिम्मत से कारज करो, पूरेंगे सब काज। ये मालवीय जी के कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिसके ऊपर वो विद्यार्थियों को हमेशा मोबिलाइज करते थे। घट घट व्यापक राम जप रे, मत कर बैर झूठ मत भाखै, मत पर धन हर मद मत चाखै, जीव मत मार जुआ मत खेलै, मत पर तिय लिख। ये सामान्य लेसन जो मालवीय जी ने रखा है, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बताए मार्ग को ही वे धर्म का आचरण बतलाते थे। इस तरीके से ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट किया है, एक ऐसी चीज बनाई है, ऐसी चीज की रचना की है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को एक माइंडसेट दे रहा है, एक महामना थॉट प्रोसेस दे रहा है। इस चीज से हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या हम लोग वर्कशॉप में करने जा रहे हैं, वर्कशॉप में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और इम्यूनिटी पर डिस्कस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी प्लान की है। यदि हम आपसे पूछें कि आप इस लॉकडाउन फेज में क्या कर रहे हैं, तो क्या मुझे अभी आप बताना चाहेंगे? क्या आप कमेंट बॉक्स में जाके इस बात को प्रेस करना चाहेंगे कि हम इस लॉकडाउन फेज को पिछले 5 महीने या आगे आने वाले 5 महीने में किस तरह से यूज करने वाले हैं? यदि आप इसको शेयर कर पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। शेयर करना, अपने गोल को सेट करना, अपने को प्लान करना, अपने टाइम को न्यूज को केवल कलेक्ट करने के लिए ना खर्च करना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वर्कशॉप को, इस डेडिकेटेड 10 डेज वर्कशॉप को इस बार आप इतना पॉजिटिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए कि आप अगले वर्कशॉप या अगले गोल के लिए, फ्री ईडू गोल के लिए खुद तैयार हो पाए। फ्री ईडू गोल में टीचिंग अपने आप में एक बहुत बेस्ट एक्टिविटी है जिसमें आदमी को पॉजिटिवली इंगेज किया जाता है अच्छी चीजों के लिए। हम आधे घंटे का केवल एक क्लास हफ्ते में एक दिन, यदि आप इस चीज के लिए सोचना शुरू करें तो आपका माइंडसेट खुद पॉजिटिव चीजों के लिए आगे बढ़ जाएगा। आप कम से कम 4 दिन 6 दिन इसको सोचेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, इसके बाद 2 दिन आप तैयार करेंगे, तीसरे दिन जाके कुछ आप अच्छा बना पाएंगे। एक बार बनाने लगेंगे तो आपको अच्छा लगना, फिर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी डेवलप होगी और इससे सोसाइटी को सर्विस भी मिलेगी। बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे वाइस चांसलर इस समय इन चीजों को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही है। आप भी इसको उम्मीद के भाव से देखिए और इस चीज को एंजॉय करिए। विद दीज वर्ड आई एम जस्ट requesting all the members who are just hearing me, please provide their comment and suggestions so that we can move forward.
दिस टीचिंग इज नॉट लास्ट क्लास। आप लोग अपने कमेंट दीजिए, हम आगे भी आपको बताएंगे। और अपने कमेंट को आप लोग व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं, और आप अपने कमेंट को यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं कि कितना सामान्य तरीके से हम लोग इस प्रेजेंटेशन को काज कर पाए। और वेबिनार को करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है वेबिनार करना। वेबिनार के थ्रू डिस्कशन करना, वेबिनार में चीजों को करके डिस्कस करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, ये बहुत आसान है। सबको इस वेबिनार के थ्रू, इस जूम हो या कोई भी ऐप हो जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को बता सकें, सिखा सकें, उसका यूटिलाइज करके इंटरेक्ट करना चाहिए। और आपके कमेंट जैसे ही हमें मिलेंगे हम उसके आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।